Hello everyone. Now we are going to start chapter 1 of science. The name of the chapter is Green Plants, the Food Factory. Okay, let's start. All living things need food to live and grow. Human beings and animals do not make their food while plants can make their own food. सभी लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ये लोग खुद का खाना नहीं बनाते हैं, हम लोग बने हुए खाने को पकाते हैं, जबकि प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं और इतना ज़्यादा बनाते हैं कि हम भी उन खानों को खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, मेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल, ये सब प्लांट्स बनाते हैं। हम लोग एप्पल नहीं बनाते, ना ही हम लोग वीट बनाते हैं, कुछ भी नहीं। दीज ऑल आर मेड बाय प्लांट्स। तो सारे के सारे खाने वो प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड while human beings and animals they are dependent on plants for their food. Okay, so you can see a picture there. Write the function of each part of a plant. This is example of a plant. Last year in standard 3 also we have read these things. So root, what is the function of root? रूट का क्या फंक्शन है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है, लीव्स तक पहुंचाता है ताकि वो खाना बना सके। स्टेम, स्टेम का क्या फंक्शन है? स्टेम का फंक्शन है रूट के एब्जॉर्ब किए हुए पानी और मिनरल को सब पार्ट्स तक पहुंचाना और लीव्स के द्वारा बनाए गए फूड को बाकी सारे ज़रूरत पार्ट्स तक पहुंचाना। ओके, सो द फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू supply water and food to all parts of plant. Next is leaf. Function of leaf is to make food. Okay, next is flower. Function of flower क्या है? flower का function है रिप्रोडक्शन। फ्लावर का फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है फ्रूट, फ्रूट का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट सीड। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट मेक देयर फूड। Okay, only green plants can make their own food in the presence of sunlight with the help of green pigment called chlorophyll. तो कौन से plants बनाते हैं खाना? Only green plants make their own food and they make their food in presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो केवल अपना खाना बनाते हैं और सनलाइट को ट्रैप करता है एक पिगमेंट, एक कलर होता है जो पत्तों में पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर, एंड दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। and that chlorophyll is present in the leaves and it traps sunlight. वो sunlight को trap कर लेता है so that leaves can make food. So in this chapter we'll learn about different types of leaf. अलग अलग types of leaves के बारे में हम लोग जानेंगे, parts of leaves, leaves के क्या parts होते हैं, and how leaves make food for the plant. We'll also learn about interdependence. Interdependence मतलब एक दूसरे पर वो कैसे निर्भर हैं, of animals, plants and human beings on one another, how they are interdependent on one another. एक दूसरे पर वो कैसे आश्रित है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। So next topic is types of leaves. leaves के क्या क्या प्रकार हैं? leaves are of different shapes and sizes. leaves जो है अलग अलग shapes और sizes के होते हैं। We can identify the plant by the type of its leaf. हम लोग plant को identify करते हैं उसके पत्तों को देखकर। पत्तों को देखकर पता चलता है कि whether it is rose plant, whether it is marigold, okay, whether it's hibiscus or mango or neem, we identify them with the shape and size of the leaf. Okay, so you can look at the picture given there. Various kinds of leaves are given: rose leaf, grapes, peepal, money plant. Yes, and definition of chlorophyll, it is very important, you'll have to learn it. Chlorophyll is a green pigment that is present in the leaves of green plants and it traps sunlight so that leaves can make food. Okay, so turn your pages. Okay, so next on the next page our topic is parts of a leaf. leaves के क्या क्या parts होते हैं? different parts of leaves. So the flat surface of the leaf is called leaf blade or lamina. So this is leaf. Okay, ये जो flat surface है this is leaf blade, इसको leaf blade कहते हैं and you can also call it lamina. Okay, या lamina भी आप इसे बुला सकते हैं. The leaf blade is attached to the stem of the plant with the help of stalk like structure called petiole. So leaf blade, ये जो leaf blade है ये जो है स्टेम से जुड़ा हुआ होता है एक छोटे से डंटी के द्वारा, एक डांट के द्वारा, दैट इज नोन एज स्टॉक एंड दिस इज अ काइंड ऑफ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स नेम इज पेटियोल. इसको क्या कहते हैं हम लोग? पेटियोल कहते हैं. पेटियोल एक्सटेंड्स इन द फॉर्म ऑफ थिन ट्यूब एंड रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ विच इज कॉल्ड मिड वेन. जो क्या कहलाता है? मिड वेन कहलाता है. दिस पेटियोल इट okay, it is further extending into the leaf
into a thin tube, ये एक आगे बढ़कर एक्सटेंड हो जाता है एक पतले से ट्यूब में, which runs through the middle of the leaf, and it is known as, this extension of petiole inside the leaf is known as midvein. Okay, this is midvein, and midvein further branches out into smaller tubes all over the leaf blade and are called side veins. ये midvein जो है वो आगे और भी फैला रहता है पूरे लीफ में, जो क्या कहलाता है, ये साइड वेन्स कहलाते हैं। ये सब क्या है, साइड वेन्स है। The veins supply water to all parts of leaf and supply food to the other parts of the plant. So these veins, what is the function of these veins? ये वेन का क्या फंक्शन है? ये जो है पानी को पत्ते के हर पार्ट्स तक पहुंचाता है, और यहाँ जो पत्ता खाना बनाता है वो वेन जो है स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, बाकी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। ओके, सो द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो लीफ पे जो है ना छोटे छोटे छेद होते हैं, और लोअर सरफेस जो होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है पत्ता का, उल्टा साइड जो होता है, उस पर ज़्यादा पाए जाते हैं ये टाइनी सरफेसेस, टाइनी पोर्स, दैट इज नोन एज स्टोमाटा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमाटा कहते हैं। वी कैन नॉट सी दिस पोर्स विद नेकेड आइज, और हम लोग इसे जो है ना खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी इट। ओके, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इन सब स्टोमाटा को देखने के लिए। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी पोर्स से होता है। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा का क्या फंक्शन है? ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है, द एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को गिव आउट करता है, बाहर निकालता है। ओके, so do you know, look at that point, the leaves of giant Amazon water lily grow over 2.5 meter across in diameter। तो ये बहुत बड़ा एक लीफ पाया जाता है, और ये अमेजन में पाया जाता है, और इसका नाम है जायंट अमेजन वाटर लिली। द डायमीटर ऑफ दिस लीफ इज 2.5 मीटर। ओके, सो इट्स रियली वेरी बिग लीफ दैट इज फाउंड ऑन अर्थ। ओके, मूविंग फर्दर, हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? सो लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। लीव्स को जो है ना हम लोग फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं ग्रीन प्लांट का। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स जो है वो खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो एक प्रक्रिया के द्वारा वो खाना बनाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? So the process of making food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। क्या कहलाता है यह प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें कि पत्ते खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल यदि नहीं होगा तो पत्ते खाना नहीं बना सकेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मदद से वो खाना बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, मूविंग फर्दर, द वर्ड फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड से बना है फोटोसिंथेसिस। फोटो दैट मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस जिसका मतलब होता है क्या? एक साथ लाना। ओके, सो लीफ ब्लेड, ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ। Stomata, tiny pores in the lower surface of leaf. These are words that you have to learn along with their definition. Moving to the next page. Okay, so page number 9, next page. Let's see. The chlorophyll present in the leaves traps the sunlight. Carbon dioxide enters from air through stomata and water is absorbed from the soil with the help of roots. Okay, तो क्लोरोफिल जो है लीव्स में जो प्रेजेंट है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में जो स्टोमाटा है, छोटे छोटे पोर्स, छेद जो है, उससे एंटर कर जाता है। वाटर जो है वो रूट से मिल जाता है। रूट से जो सॉइल के द्वारा, सॉइल में जो वाटर पाया जाता है उसको रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो स्टेम के द्वारा लीफ तक आ जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, एवरीथिंग हैज रीच्ड। Okay, so during photosynthesis, carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight, okay, are changed into glucose that is known as sugar. Okay, तो शुगर बनता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे शुगर का फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट करते हैं, और क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, दैट इज नोन एज शुगर। दिस शुगर इज द सोर्स ऑफ फूड फॉर प्लांट। और यही शुगर जो है वो खाना है पेड़ पौधों के लिए। क्या है?
खाना है। ओके, द शुगर इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड रिमेनिंग फूड इज चेंज्ड इनटू स्टार्च। शुगर को हर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है स्टेम के द्वारा, ताकि वो अपना सारा का सारा पोषण ले ले, और बाकी जो खाना बच जाता है वो स्टार्च में चेंज हो जाता है, स्टार्च में चेंज होता है और वो स्टोर कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा। स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टार्च जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, और किस में स्टोर किया जाता है? रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। ओके, सो जो हम लोग खाना खाते हैं दैट इज स्टोर्ड स्टार्च ऑफ द प्लांट। ओके, एक्स्ट्रा स्टार्च जो बच गया पेड़ के पास जो खाना बच जाता है, जैसे एप्पल, मैंगो, ये सारे क्या है? ये सब के सब स्टार्च है। व्हीट हो गया, राइस हो गया, एवरीथिंग, द थिंग्स दैट वी ईट आर एक्स्ट्रा स्टार्च दैट इज स्टोर्ड in different parts of plant. Okay, see, an important question is given there, that is high order thinking skill question. Green leaves make food for the plant with the help of chlorophyll. green leaves जो है वो खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से। what if the roots are green? क्या होता है यदि रूट्स ग्रीन होते? will they also make food for the plant? क्या वो भी खाना बना सकते पेड़ पौधों के लिए? तो इसका क्या जवाब होगा? नहीं, तब भी वो खाना नहीं बना पाते, क्योंकि सनलाइट जो है वो सॉइल के अंदर नहीं पहुंच पाता, और बिना सॉइल के क्लोरोफिल के अकेले प्रेजेंस से जो है खाना नहीं बनाया जा सकता है। ओके, सो सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज लेट्स डू इट। स्टार्च का टेस्टिंग है। सो व्हाट यू हैव टू डू, इसमें आपको एक पोटैटो लेना है। दिस यू हैव टू रीड आउट ऑन योर ओन, मैं बस समझा दे रही हूँ। सो यू हैव टू टेक अ पोटैटो, कट इन इंटू 2 हाफ्स, 2 हाफ्स में आप उसको कट कर लीजिए। आयोडीन सॉल्यूशन लीजिए, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। जब आप उस आयोडीन सॉल्यूशन को कटे हुए पोटैटो पे डालेंगे, दैट आयोडीन सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर। वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ब्लू ब्लैक कलर इज द कलर दैट यू सी इन द इंक ऑफ फाउंटेन पेन। ओके, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वो चेंज होता है तो इससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च पाया जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन वन अनदर। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर। ये लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एज ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड सप्लाई। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है वो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। उन्हें फल के लिए, सब्जी के लिए, अनाज के लिए, सब कुछ के लिए किस पर डिपेंडेंट होना है? पेड़ पौधों पर निर्भर होना पड़ता है। दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ विद विच दे गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली। और उन्हें जो है ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है